हाँ जी, ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ। ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH। ਇਹ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ R ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी ग्रुप लगे हो सकता है, बेंजीन भी लगी हो सकती है, ठीक है। अगर आप कीटोन की गल करिए तो कीटोन दे विच जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ R ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ R ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ, ਐਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਥੇਨੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ KMnO4 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ KMnO4 ਚ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। एक तो जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन वाले जो OH बॉन्ड सी वो हाइड्रोजन रिमूव होएगी, दूसरा जो अल्फा कार्बन दे नाल H लग्या होया वो हाइड्रोजन रिमूव होएगा, ठीक है। सो ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ डिस्कस कर चुके हैं, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ OH बॉन्ड इधरों हाइड्रोजन चली गई, इधरों CH बॉन्ड उसकी हाइड्रोजन चली गई, ठीक है। H ਤੇ O ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ CH3 CH ਤੇ O। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH। C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ, it has 2 carbon atoms 1 2, ठीक है। 2 carbon atoms मतलब इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन। एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड का सफिक्स ग्रुप होता है अल, तो इसका नेम है इथेनॉल, ठीक है। वेट हाँ जी, सेम रिएक्शन जो है आप सेकेंडरी अल्कोहल नाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंडरी अल्कोहल है, एक नेसेंट ऑक्सीजन आपने ऐड की, सेम वही रिएक्शन, इधरों ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन, इधरों अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन, तो H2 and O वाटर अगेन रिमूव हो जाएगा, CH3 CH3, ठीक है। इथे कार्बन ते ऑक्सीजन दे विच बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इथे सिंगल बॉन्ड है तो हुण इधरों कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधरों ऑक्सीजन का ब्रेक हो गया, तो दोनों ने आपस दे विच एक होर बॉन्ड बना लेना, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस बारी अपने कोले बन गया कीटोन। इस कीटोन का नाम है एसीटोन, इट इज नोन एज एसीटोन, ठीक है। एक कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम देना तो की बनेगा 1 2 3 कार्बन एटम्स है इसके विच, 3 कार्बन एटम्स मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, प्रोप एन। जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है कीटोन है उसका सफिक्स ग्रुप होता है ऑन, सो इसके नेम के एंड पे आएगा ऑन, दिस इज प्रोपेनॉन, ठीक है। जो ऑन है वो सेकंड कार्बन के ऊपर है तो इसमें आप लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑन, दिस इज नोन एज प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल लिया सी एल्डिहाइड बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो कीटोन बन गया, टर्शरी अल्कोहल नाल तुसीं मैनूं ट्राई करके दस्सिओ की बनेगा, ठीक है। अगर नहीं पता लग गया तो पुरानी वीडियो देखो, उस दे विच पता लग जाएगा। हाँ जी, सेकेंड मेथड आप डिस्कस करते हैं फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। ये भी अल्कोहल जब किया हुआ है। सो डिहाइड्रोजिनेशन करनी है, प्राइमरी अल्कोहल जो है मैं ले रहे हैं एक
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ, ਇਧਰੋਂ OH ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ H ਤੇ 2 ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, H2, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ H2O ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ H2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, CH3COH। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ H ਤੇ H ਮੀਨਸ ਕਿ H2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ CH3CCH3 ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਕੀਟੋਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। टर्शियरी अल्कोहल ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਫਰੋਮ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕਾਈਨਸ, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन है अपने को सपोज करो C ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है। इधर मान लो CH3 लगा हुआ है, ठीक है। सिंपली आप एक प्रॉपर सिंपल एल्काइन ले रहे हैं, दिस इज नोन एज प्रोपाइन, प्रोपाइन। तब प्रोपाइन इसकी हाइड्रेशन करनी है, ठीक है। हाइड्रेशन मींस के वाटर ऐड करना है। तो वाटर अगर आप ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैक करेगा जिस कार्बन को लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। सो दिस कार्बन जिसके ऊपर मैंने एरो लगाया इसके कोले कोई हाइड्रोजन नहीं है, जो एक कार्बन से इसके कोले 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। इट मींस कि जो ये वाली कार्बन एरो वाली कार्बन है जिसके कोले कोई हाइड्रोजन नहीं है उसके ऊपर अटैक होएगा, उसके ऊपर अपना लगेगा OH, ठीक है। सो इधरों ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा। इथे अपने को लग जाएगा OH जो सेंटर वाली कार्बन है, ਤੇ जो फर्स्ट वाली कार्बन है इसके नाल आके लग जाएगा H, ठीक है। H ਦੇ OH ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ OH ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ H ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਨੋਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੋਟੋਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ H ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ H ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ CH3 CCH2। हाँ जी, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ O ਤੇ H ਸੀ, H ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਆ ਬੌਂਡ ਸੀ ਇਹ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸੀ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆ ਜੋ ਬੌਂਡ ਸੀ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ H। CH2 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ H ਵੀ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CH3। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀਟੋਨ ਬਣ ਗਏ, ठीक है। सो अगर आप ट्रिपल बॉन्ड की हाइड्रेशन करांगे तो अपने को कीटोन की प्रिपरेशन हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड है रोजनमंड रिडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है तो उन्हां दे विचों रोजनमंड रिएक्शन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो रोजनमंड दे विच की करना है, आपने कोई एसिड क्लोराइड्स लेने हैं, एसिड क्लोराइड्स ਦੀ रिडक्शन करनी है। नेम ही दस रहा है रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन मींस की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लवांगे जो हाइड्रोजन डोनेट करता होवे वो हाइड्रोजन डोनर ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ है, ठीक है। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰੋਂ क्लोरीन ਬਾਹਰ, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन ਪਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ क्लोरीन ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ HCl ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ, ठीक है। ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। एल्डिहाइड बन जाएगा। रोजनमंड रिडक्शन नाल तुसी सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन नहीं बना सकते, ठीक है। दोनों साइड पे R ग्रुप नहीं लगा सकते क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं तो एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड होएगी, दोनों साइड पे हाइड्रोजन ऐड नहीं होएगी, ठीक है। ओके, जो रोजनमंड सीगा उसने जो कैटलिस्ट यूज किया, ठीक है, फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक तो हाइड्रोजन गैस ऐड की H हाइड्रोजन लई ते कैटलिस्ट यूज किया सी पैलेडियम ते नाल बेरियम सल्फेट, ठीक है। ते इस दे नाल ही उसने एक कह लो कि इनहिबिटर यूज किया जो कि रिएक्शन की स्पीड ਨੂੰ कंट्रोल च रखता है, दैट इज सल्फर। सो ये सारे जो कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ
करने हैं, ठीक है, इन्होंने याद रखना है। पैलेडियम, बेरियम सल्फेट एंड सल्फर, ये सारे अपने ऐड किए हैं, ठीक है। सल्फर ऐस करके ऐड किया ताकि रिएक्शन की स्पीड कंट्रोल दे विच रहे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, हाँ जी, स्टीफन रिडक्शन जो है इसने नाइट्राइल्स लाई सी, नाइट्राइल्स की रिडक्शन की, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। नाइट्राइल्स की रिडक्शन करनी है, रिडक्शन मींस कि अगेन हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। तो इसने जो कैटलिस्ट यूज किया दैट वाज टिन, ठीक है, टिन क्लोराइड, सॉरी इथे H2 नहीं आएगा, थोड़ी गड़बड़ होगी। नाइट्राइल्स की रिडक्शन करनी है विद टिन क्लोराइड, ठीक है, टिन क्लोराइड ते डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं ऐड करनी, HCl ऐड करना है, ठीक है। स्टीफन ने HCl ऐड किया सी, जो हाइड्रोजन अपन मिलेगी वो HCl तो मिलेगी। सो की होएगा, हाँ जी, जो नाइट्राइल्स ने उन्होंने दी रिडक्शन करनी है ਆਪਾਂ टिन क्लोराइड ਦੇ HCl ਪਾ ਕੇ। तो सब तो पहला ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ रिडक्शन करांगे इथे ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड रह जाएगा, RC डबल बॉन्ड N, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। सो एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन ना लग जाएगी, एक हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन ना लग जाएगी, ठीक है, दोनों नाल एक हाइड्रोजन लग गई, ठीक है, मींस के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लगनगे, ठीक है। वो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, HCl आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पाया हुआ है, जिन्ना मर्जी यूज हो जाए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन लगने, 4 लगने, जिन्ने मर्जी रख सकते हैं। सो RCH डबल बॉन्ड NH। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ H2O, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ NH3, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੋਨੀਆ, NH3 ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਕੀ ਬਚਿਆ RCH, ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ठीक है। सो अगेन एल्डिहाइड बन गया। तो स्टीफन रिएक्शन जो है वो भी एल्डिहाइड के लिए है। स्टीफन का कैटलिस्ट यूज रखना है, याद रखना है टिन क्लोराइड, दिस इज SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। सो ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है फ्रॉम, हाँ जी, नेक्स्ट है फ्रॉम चलो पहला ये कर लेने ਆਪਾਂ फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਲੁइन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ CH3 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੋਲੁइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ CH3 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ KMnO4 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ KMnO4 ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਹ, ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚਡ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ COH ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫॉर ਅ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਾਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਈਲਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ CrO2Cl2, CrO2Cl2, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੋਮਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਕ੍ਰੋਮਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਲੁइन ਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੈਲਡੀਹਾਈਡ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਾਪੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੈਲਡੀਹਾਈਡ। अच्छा, इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नेम है इटार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शंस है, नेमिंग रिएक्शन चंगी तरह लर्न करो। हाँ जी, एक और मेथड है टोलुइन ਨੂੰ ਬੈਂਜ਼ੈਲਡੀਹਾਈਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਨਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਲੋਰੀਨ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ CH3, ठीक है। इधरों अगर मैं H बार करदा तो इधरों Cl बाहर निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा। अपने को की होएगा इथे कार्बन दे नाल H की जगह ते Cl लग जाएगा, ठीक है। ये देखो ये HCl बाहर निकल गया ते कार्बन नाल H की जगह ते दूसरा Cl लग जाएगा, ठीक है। एक और क्लोरीन ऐड कर देंगे तो दूसरा H भी बाहर निकल जाएगा तो उसकी जगह पे भी क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। तो तीसरा हाइड्रोजन अपने रखना है, ठीक है, मींस के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ही अपने ऐड करने हैं। सो नेक्स्ट इस तो बाद अपने वाटर करना है ऐड, ठीक है। वाटर ऐड करांगे तो HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इन्होंने वाटर ही ऐड किया कि NaOH किया, चलो वाटर नाल की हुई है। सो वाटर ऐड करांगे, ठीक है, इधरों HCl फिर बाहर निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, 2 HCl जो है वो बाहर निकल जाएंगे,
-2HCl। सो एट द एंड अपने को कार्बन H, क्लोरीन की जगह पे इस बारी लग गया OH, ठीक है, क्लोरीन की जगह पे लग गया OH। तो अपन पता है किसी भी कार्बन नाल 2 OH ग्रुप्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इधरों H ते इधरों OH, H ते OH मिलके वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। जो वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, थोड़ा जिहा गर्म कर देंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा। इत्थे अपने को की बचेगा कार्बन H ते सिंगल बॉन्ड O सी, सिंगल बॉन्ड O की जगह पे की बन जाएगा ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O H। सो ये अपने को बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन गया। सो ये दो मैथड है कि टोलू ਨੂੰ ਆਪਾਂ एल्डिहाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो एक और रिएक्शन है नेक्स्ट, गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन भी ठीक है, इन्हां रिएक्शंस दे विच कुछ ज्यादा नहीं याद रखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद करने हैं, ठीक है, ते कैटलिस्ट की यूज किया वो याद रखना है। बहुते ज्यादा मैकेनिज्म नहीं है, 1 मार्क दे विच रिएक्शन आनी है, 1 मार्क च नहीं अपने लर्न करनी है। सो गैटरमैन कोच दे विच डायरेक्ट उन्हें की कीता सी बेंजीन ते कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एनहाइड्रस एल्यूमीनियम क्लोराइड, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा काम है, इतने बेंजीन नाल H लगी हुई है तो C डबल बॉन्ड O तुसी ऐड कर रहे हो। सो सिंपली इतने बन जाएगा C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बन गया। बड़ा सिंपल काम है। सो ये कुछ मैथड्स है एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन दे, ठीक है। इस तो बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है कीटोन की प्रिपरेशन। चलो कीटोन की प्रिपरेशन के भी कुछ मैथड्स कर लिए। ये जो मैथड्स ने अपने एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन दे कीते हैं, ठीक है। कीटोन के लिए फर्स्ट मैथड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड Cl है, एसिड क्लोराइड है अपने को, ठीक है। इसनों आपां डाई एल्काइल कैडमियम नाल रिएक्ट कराना है, डाई एल्काइल कैडमियम, दिस इज एसिड क्लोराइड, ACID एसिड क्लोराइड। इसनों डाई एल्काइल कैडमियम नाल आपां ने रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एल्काइल डोनर है, मतलब ये R ग्रुप डोनेट कर रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेने आप इत्थे R' लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये R ग्रुप डोनर है, R ग्रुप डोनेट करेगा तो इधरों क्लोरीन बाहर निकल जाएगी, ठीक है, R' C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इधरों क्लोरीन बाहर कर देगा ते R उसकी जगह पे लग जाएगा। सो इत्थे R लग गया, कीटोन बन गया, ठीक है। आपां की कर रहे हैं, इस नाल दे 2 मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं क्योंकि 2 R ग्रुप्स है ना, तो दोनों च एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा ते इधरों दोनों दे नाल R ग्रुप लग जाएगा, प्लस बचा की कैडमियम ते 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। सो अपने को बन जाएगा कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। बड़ा सिंपल मेथड है। ओके, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। ओके, सो नाइट्राइल्स नु कीटोन्स दे विच कन्वर्ट करना है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसनु कीटोन च कन्वर्ट करना है। तो इस दे लिए आपां नु यूज करना पेगा कोई ग्राइनार्ड रिएजेंट। ग्राइनार्ड रिएजेंट सपोज करो CH3 MgBr आपां यूज कर लेने, CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। सो CH3 नेगेटिव ने अटैक करना है कार्बन ते जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन को चला जाएगा। ये बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज इतने कार्बन के CH3 ने अटैक करता। डबल बॉन्ड के उत्ते N के उत्ते आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नाल लग जाएगा ये वाला MgBr, ठीक है, दिस इज N नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव। सो इस स्टेप होने तो बाद ग्राइनर रिएजेंट विच नेक्स्ट स्टेप होंदा हाइड्रोलाइसिस करना अंडर एसिडिक मीडियम, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कर देने आपां। सो की होएगा, इधरों MgBr ते OH ये बाहर निकल जाएगा, MgBr ते OH ये बाहर निकल गया, ठीक है। ते इत्थे बच गया RCCH3 डबल बॉन्ड N नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये बन गया NH, ठीक है, NH बन गया। इस तो बाद नेक्स्ट स्टेप आज ही आप थोड़ी देर पहले यही काम करके आए हैं, ठीक है। वाटर ऐड करो, ठीक है, वाटर ऐड करांगे की होएगा H2O, ठीक है, सीधे लिख लेंगे। इधरों NH ते H2, दिस इज अमोनिया। ये ऑलरेडी एक स्टेप पिछली रिएक्शन च भी आके हटिया किसी च, NH3 बाहर ते इधर बच गया अपने को RCCH3, इथे कार्बन ते ऑक्सीजन बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। जो आपां यही रिएक्शन कीती सी, नाइट्राइल स्टीफन रिएक्शन कीती सी, ठीक है। ते नाइट्राइल्स जेडे हैगे उसनु एल्डिहाइड च कन्वर्ट कीता सी, इथे आपां नाइट्राइल्स नु कीटोन्स दे विच कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन हैगी है, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। सो ये अपने को कुछ रिएक्शंस है, ठीक है।
ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕੀਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CH3C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O Cl, ਐਸਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਥੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ H ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਧਰੋਂ H ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ Cl ਨਿਕਲ ਗਿਆ, HCl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH3, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।